So good morning all. We are here in the syllabus of Introduction to Programming Language using C, Part 2, paper number BCS 202. In previous chapter, we have seen the concept of functions, how to declare the function, how to pass parameter to the function, how value will be returned by that function, what is recursion, then string related functions. Then we have seen the storage classes which are used in C. Now in this second chapter, we are going to see very interesting topic which is present in C and C++, but which is not present in the further programming languages like Java. Pointers is the next chapter. What we have to learn from this chapter, that is what is pointer, how to declare the pointer, how to initialize the pointer with null value, uh, concept of dereferencing pointers, then pointer to pointer, array of pointer, functions and pointers, function to pointer to function, dynamic memory allocation, and command line argument. We have to see all these 7 to 8 units which are present, or 7 to 8 topics which are present in this unit 2 of pointers. So we will start with concept of pointer. So what is pointer? As you know, every variable has its own memory location. हम बोलते हैं ना कि जब मैं a वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज ए इंटीजर, देन 2 bytes ऑफ मेमोरी इज रिजर्व टू स्टोर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. सो एंड एवरी मेमोरी लोकेशन हैज इट्स एड्रेस. क्योंकि हम जब मेमोरी बोलते हैं इट इज ए रैम, तो रैम के हर एक बाइट का एड्रेस होता है डिफाइंड विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ampersand operator which denotes an address in memory. जैसे कि हम स्कैनएफ स्टेटमेंट में लेते हैं, देखो स्कैनएफ %d %n. तो व्हाट दैट %n इंडिकेट्स कि जो मैं वैल्यू कीबोर्ड से ले रहा हूँ वो वैल्यू मेमोरी में रैम में कहाँ पे स्टोर करनी है, तो वो 2 बाइट जिसके लिए हमने नाम दिया है n. So what is n? N is the variable which is declared as an integer. And when I write scanf %d %n, at that time what will happen? The value which is जो हमने कीबोर्ड से रीड की है वो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर करनी है, तो इट शुड बी स्टोर्ड ऑन द मेमोरी लोकेशन विच इज रिजर्व्ड फॉर दैट ईयर. So ampersand sign plays an important role in C in case of reading the value. Now what is definition of pointer? A pointer is a variable whose value is address of another variable. So in other words, you can say a pointer is a variable which holds address of some another variable. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे समझो 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ. वन इज सपोज p, इंटीजर ही है, और सेकंड इज सपोज a. Now just assume that this p is declared as a pointer and a is declared as a normal variable. So just assume that a value of a is initially 10. So while declaring this p, हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंटीजर a कॉमा p. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग दिस p एज अ नॉर्मल वेरिएबल, वी विल डिक्लेयर दिस p एज अ पॉइंटर वेरिएबल. तो पॉइंटर वेरिएबल अगर मुझे डिक्लेयर करना है ना, तो ये p के पीछे मुझे एम्परसेंड लगाना पड़ेगा, सॉरी एस्टेरिक लगाना पड़ेगा. मीन्स p डिक्लेयर करते वक्त मैं कुछ इस तरह से करूंगा, इंटीजर स्टार p, and a is declared as a normal variable. A is equal to 10 suppose initially. Now if I write p is equal to एम्परसेंड a, का मीनिंग क्या हुआ आप देखो. Now just assume that a is stored on memory location suppose 1000. What is value of a? It is 10. Just assume that 2 bytes which are reserved to store p, or address of p, is suppose 2000.
When I write p is equal to ampersand a, it means that this value will be stored here. मीन्स अब p की वैल्यू क्या हो गई, इट बिकम्स 1000. अब ये 1000 क्या है, वैल्यू है क्या, नहीं, इट इज एड्रेस ऑफ a. एंड what this star indicates, वैल्यू विच इज stored on that address. मीन्स a इज इक्वल टू अगर 10 है, तो आफ्टर राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शन आप ऐसा बोल सकते हो कि नाउ स्टार p इज इक्वल टू 10. और p को हमने क्या किया है, p इज इक्वल टू एम्परसेंड ए लिखा है. मीन्स इसका इनडायरेक्ट अब क्या हो गया, स्टार ऑफ p की जगह एम्परसेंड ए डाल दो, तो स्टार ऑफ एम्परसेंड ए is equal to 10. So what is this ampersand? Ampersand means address of. And what is star of ampersand? It means that value which is stored on that particular address. So pointer is a variable whose value is the address of another variable, that is direct address of the memory location. Like any variable or constant, you must declare a pointer before you can use it to store any variable address. तो अगर आपको पॉइंटर यूज करना है तो इट इज नेसेसरी दैट यू शुड डिक्लेयर दैट वेरिएबल एज अ पॉइंटर. अब यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन दिया है कि डिक्लेरेशन करने का सिंटैक्स क्या है, डाटा टाइप वेरिएबल नेम तो लिखना ही है, जैसे हम इंटीजर ए लिखते थे वैसे अब हमें क्या करना है कि इफ आई वांट टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल शुड बी प्रेसिडेड बाय एस्टेरिक साइन और स्टार जिसे हम कहते हैं, वो साइन यूज करके हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते. तो यहाँ पे देखिए हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 20 एंड स्टार p. तो a इज अ नॉर्मल वेरिएबल वेर एज स्टार p इज अ पॉइंटर. CLR SCR लिखा है, एड्रेस ऑफ a इज %x. नाउ कीप इन माइंड दैट दिस %x इज यूज्ड फॉर हेक्स वैल्यू, और हमें मालूम है कि मेमोरी के जो लोकेशन होते हैं वो नॉर्मली हेक्स वैल्यू में रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज किया है, तो %x यूज किया है. So printf address of a is %x address of a. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है, p इज इक्वल टू एम्परसेंड ए. तो हम अब ये कह सकते हैं कि नाउ व्हेन यू राइट p इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, इट मीन्स दैट दिस p पॉइंट्स टू a. तो p इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, देन printf वैल्यू ऑफ a इज %d. तो a की वैल्यू क्या है 20 और वैल्यू ऑफ ए इज %d. लेकिन आपने यहाँ पे अगर देखा तो हमने वेरिएबल अलग अलग यूज किए हैं, यहाँ पे हमने स्टार p यूज किया है, यहाँ पे हमने a यूज किया. तो व्हाट इज ए, दिस इज नॉर्मल एज वैल्यू. व्हाट इज स्टार p, p की वैल्यू हमारी क्या है, इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ ए. व्हेन आई राइट स्टार p, इट इज नथिंग बट वैल्यू विच इज स्टोर्ड ऑन एड्रेस ऑफ ए. ए के एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है 20. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एड्रेस ऑफ ए जो भी ए का एड्रेस रहेगा नॉर्मली एफ कुछ रहेगा, देन p इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, वैल्यू ऑफ ए इज पहले 20 आएगा और स्टार p के लिए भी 20 आएगा. तो लाइक दिस यू कैन डिक्लेयर पॉइंटर्स एंड यूज पॉइंटर्स इन योर प्रोग्राम. अब डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन में दो तीन चीजें आती है, एक दो ही चीजें मैंने ली है वैसे. फर्स्ट वन इज नल पॉइंटर्स इन सी. So what do you mean by null? Null is represented as 0. So integer star ptr is equal to null. printf the value of ptr is %x and ptr. अगर आपने यहाँ पे देखा तो इस एग्जाम्पल का रिटर्न क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ ptr इज 0, क्योंकि हमारा पॉइंटर किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है. स्टार ptr इज इक्वल टू नल का मीनिंग क्या होता है कि ये नल है, 0 है. अभी तक हमने उसको कुछ मेमोरी लोकेशन की वैल्यू दी ही नहीं है. So it is always good to assign a null value to a pointer variable in case you do not have exact address to be assigned. तो जो एड्रेस मुझे असाइन करना है वो अगर आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन डिक्लेयर इट एज अ नल पॉइंटर. दिस इज डन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन. अ पॉइंटर दैट इज असाइन्ड एट अ नल इज कॉल्ड एज नल पॉइंटर. तो ऐसा पॉइंटर जिसको इनिशियली नल वैल्यू असाइन होती है, यहाँ पे हमने ptr लिया है, सो दिस ptr इज कॉल्ड एज नल पॉइंटर.
दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है, पॉइंटर अरिथमेटिक भी है। पॉइंटर की वैल्यू, अब आप कहेंगे कि पॉइंटर तो एड्रेस है तो इसको वैल्यू कैसे बढ़ेगी, तो वही प्रेफर यूजिंग अ पॉइंट, पहले हम इंक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर का देखते हैं, बाद में डिक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर का। We prefer using a pointer in our program instead of an array because the variable pointer can be incremented, unlike the array name, which cannot be incremented because it is a constant point. The program increments the variable pointer to access each element of array. अगर आपने इस प्रोग्राम को देखा तो हमने पहले क्या किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने array का इनिशियलाइजेशन देखा था। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इंटीजर a is equal to 10, 100, 200. So what is this? This is nothing but a of 0. This is nothing but a of 1. This is nothing but a of 2. उसके बाद हमने क्या लिखा है, इंटीजर i कॉमा स्टार ptr. So star ptr is nothing but the pointer which is declared in my program. यहाँ पे क्या लिखा है, ptr is equal to a. अब हमने यहाँ पे एम्परसेंड साइन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है कि बिकॉज व्हेन आई डिक्लेयर एन एरे, array variable itself defines the base address of the array. Base address means what? Address of first element. उसे हम नॉर्मली कांस्टेंट पॉइंटर कहते हैं। तो हम अगर a और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके तीन वेरिएबल ले रहे हैं, तो नो डाउट दैट these three variables are stored on memory location a of 0, a of 1 and a of 2. When I write ptr is equal to a, so that a itself without square bracket, this a itself is nothing but base address of array. Base means what? Address of first element. So a itself is a base address. तो ये 10 का जो भी मेमोरी लोकेशन रहेगा वो a में स्टोर होगा। और यहाँ पे अगर मैं ptr इज इक्वल टू a लिखता हूँ तो इसका मीनिंग सीधा सीधा ये है कि ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड a ऑफ 0, so that this pointer points to first element of this array. अब हमने यहाँ पे लूप यूज किया है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर 2 वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 3, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो दिस लूप टर्मिनेट्स। लेकिन लूप के अंदर हमने क्या लिखा है देखो, प्रिंटफ एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज परसेंटेज, पहले पीटीआर का एड्रेस बेस एड्रेस प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसेंट डी, यहाँ पे हमने स्टार पीटीआर यूज किया है, यहाँ पे पीटीआर, तो ये प्रिंट करेगा एड्रेस और ये प्रिंट करेगा उस एड्रेस पे की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे एक एरे लिया है, लगभग नहीं, तीन ही एलिमेंट का है, सॉरी, तीन ही एलिमेंट का एरे है। पहली वैल्यू है 10, सेकंड वैल्यू है 100 एंड थर्ड वैल्यू है 200 के साथ हमने क्या लिया है कि ptr नाम का पॉइंटर लिया है एक, and when you write ptr is equal to a, this ptr points to first element. तो यहाँ पे ptr की वैल्यू क्या, i और ptr की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, परसेंट डी मीन्स i की वैल्यू प्रिंट होगी 0, और उसके बाद है परसेंट एक्स, यहाँ पे हमने ptr लिखा है, ptr किसे पॉइंट कर रहा है, इस 10 को, तो 10 का जो भी एड्रेस है दैट एड्रेस विल बी डिस्प्ले। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसेंट डी। वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसेंट डी मीन्स व्हाट, पहले एलिमेंट की वैल्यू क्या है, तो ये है स्टार पीटी। स्टार पीटीआर मीन्स व्हाट, ये पीटीआर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है वो मीन्स, नो डाउट ये स्टार पीटीआर की जगह पहले इटरेशन में 10 प्रिंट होगा। अब दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली प्लस प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द करंट वैल्यू बाय 1, बट हियर व्हाट विल हैपन, देयर इज एरे ऑफ इंटीजर्स। अगर मैं ये बोलता हूँ कि पहला एरे मेमोरी लोकेशन 100 पे है, तो सेकंड एरे डेफिनेटली मेमोरी लोकेशन 102 पे होगा और थर्ड 104 पे होगा। Am I right? Because to store one integer value 2 bytes are required. So हमने अगर इंटीजर लिए है तो पहला इंटीजर अगर 1000 मेमोरी लोकेशन पे है तो दूसरा 1002, सॉरी 102, तीसरा 104 पे स्टोर होगा। अब अगर मैं पॉइंटर की वैल्यू पहले क्या है, अब 100 है, बिकॉज एड्रेस ऑफ फर्स्ट a इज इक्वल टू 100। जब मैं ptr प्लस प्लस करता हूँ ना, तो अब ये वैल्यू एक से नहीं बढ़ती, दिस वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2। जिस डेटा टाइप का आपका पॉइंटर है उसी डेटा टाइप के नंबर ऑफ बाइट के हिसाब से पॉइंटर की वैल्यू बढ़ेगी।
So here ptr plus plus means initially this value is 100. Now this value becomes 102, so that this pointer points to next element of this, second element को अभी point करें. Then again whether I is less than or equal to 3, yes, ये सब होते रहेगा. Means 3 times it will display 10, 100 and 200. तीनों वैल्यूज प्रिंट होगी, लेकिन प्रिंट होते वक्त हमने कहीं भी a of I यूज नहीं किया है, हमने ये पॉइंटर की वैल्यू यूज. नाउ इन सेम वे डिक्रीमेंट, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ पॉइंटर पॉइंट्स टू फर्स्ट एलिमेंट, हमने यहाँ पे क्या किया है, ptr इज इक्वल टू a of 2. a of 2 मीन्स कहाँ पे प्रिंट करा है, ये a of 0 है, ये a of 1 है और ये a of 2 है. मीन्स अब ये पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पहले यहाँ पे. तो उसी तरह से हमने अगर सोच लिया कि 10 1000 मेमोरी लोकेशन पे है, 100 1002 पे आएगा, बिकॉज नॉर्मली एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस. तीसरा आएगा 1004 पे. पहला स्टेटमेंट हमने क्या ले किया है, ptr इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एम्परसेंड होना जरूरी, ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड, करेक्शन कर लो, ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड ef2 मीन्स नाउ दिस ptr पॉइंट्स टू थर्ड वेरिएबल और इसका एड्रेस वो ptr में आ जाएगा. अब यहाँ पे हमने एरे कैसा भी लो, ये लूपिंग कैसा भी लो, 2 से लेके 0 तक लो या फिर 0 से लेके 2 तक लो, कैसा भी लिया तो चलेगा, लेकिन एड्रेस ऑफ वेरिएबल परसेंट डी इज परसेंट एक्स. अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार पीटीआर मीन्स पहले ये वैल्यू प्रिंट करेगा 1004 पे जो भी है वो, तो 1004 पे क्या है, 200 है, ये प्रिंट होगा बिकॉज पॉइंटर करंटली पॉइंट्स टू दिस वेरिएबल. अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ptr माइनस माइनस, तो इसको जो पॉइंट कर रहा था उसको 2 से कम करो, सो दैट इट पॉइंट्स टू 1002. 1002 में 100 है, वो 100 प्रिंट करेगा, फिर माइनस होगा, फिर वो आएगा 1000 पे, 1000 की वैल्यू प्रिंट करेगा एंड 3 टाइम्स डिस्प्ले करने के बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. तो दिस इज रिगार्डिंग what you can say arithmetics of a pointer and how to declare a pointer and initialization. उसके बाद हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक आता है डीरेफरेंसिंग. डीरेफरेंसिंग हम इसे क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है. जब मैं लिखता हूं p इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, तो होता क्या है कि समझो अगर ए की वैल्यू 10 है तो स्टार p की भी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी. अगर मैं लिखता हूं कि स्टार p इज इक्वल टू स्टार p प्लस 10, तो वैल्यू किसकी चेंज होगी, सी. यहाँ पे अगर आप ये अच्छी तरह से समझ लेते हो कि P किसे पॉइंट कर रहा है, ए को, एक का कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन है, उसके ऊपर समझो 10 वैल्यू स्टोर है. When I write P is equal to ampersand A, this pointer P points to this A, and when I write star P is equal to, तो स्टार ही पकड़ो, स्टार P is equal to स्टार P plus 10. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि P जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू 10 से बड़ा, तो P कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, A को, तो A की वैल्यू जो 10 थी वो 20 हो जाएगी. लेकिन आपने अगर ये एक्सप्रेशन देखा तो हमने क्या किया है, रेफर करके वैल्यू चेंज की है, डायरेक्ट A की वैल्यू नहीं ली है. हमने क्या किया है, स्टार P इज इक्वल टू स्टार P प्लस 10. इसके बाद अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंट डी ए, सिंपल स्टेटमेंट, तो वो वैल्यू जो 10 थी पहले वो अब क्या प्रिंट हो जाएगी, 20 प्रिंट हो जाएगी. So dereferencing pointer means getting the value that is stored in the memory location pointed by the pointer. Star operator is used along with the pointer variable while dereferencing the pointer. Dereferencing operation is performed to access or manipulate data contained in the memory location pointed to by a pointer. Any operation performed on the dereferenced pointer directly affects the value of that variable. यहाँ पे हमने क्या किया है कि P के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, A की वैल्यू चेंज हो रही है. तो विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इट पॉइंट्स टू. वो पॉइंटर जिस
मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उसको बाकी कुछ मालूम नहीं रहता है कि उसका नाम क्या है। इट जस्ट चेंज द वैल्यू विच इज प्रेजेंट ऑन दैट मेमोरी लोकेशन, और हम कहते हैं कि वो मेमोरी लोकेशन ए का था, इसलिए वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, ए की हो रही है, लेकिन हम यूज किसका कर रहे हैं, तो पी का कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी दिया है शायद, यस। तो देर इज दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ डी रेफरेंसिंग पॉइंटर। अगर आपने यहाँ पे देखा तो हमने क्या किया है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 87, तो ए के लिए 2 बाइट मेमोरी कहीं ना कहीं तो रिजर्व होगी, तो हमने नाम दिया है ए। जस्ट एज्यूम दैट दिस ए इज स्टोर्ड ऑन मेमोरी लोकेशन 1000 एंड वैल्यू विच इज स्टोर्ड ऑन दिस मेमोरी लोकेशन इज 87। पहला हो गया। देन इंटीजर स्टार P1 इज इक्वल टू एम्परसेंट ए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि P1 को पॉइंटर बोल के डिक्लेयर किया है, और इमीडिएटली हमने कहा है कि दिस पॉइंटर P पॉइंट्स टू ए। द वैल्यू ऑफ P1 एंड एड्रेस ऑफ ए दोनों सेम रहेंगे। P1, यस, P1 लिया है हमने इंस्टेड ऑफ P। तो वैल्यू ऑफ P1 क्या है, इसका एड्रेस मीन्स P के जो 2 मेमोरी लोकेशन रहेंगे वहां पे क्या रहेगा, 1000। बस हमने क्या लिखा है, P1 इज इक्वल टू एम्परसेंट। तो वैल्यू ऑफ P1 एंड एड्रेस ऑफ ए बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई परसेंट एक्स P1। उसके बाद हमने क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ P1 परसेंट एक्स, अभी इसका जो भी एड्रेस रहेगा वो प्रिंट हो। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ ए 3 बार प्रिंट की है, पहले ए से प्रिंट की, बाद में स्टार P1 से प्रिंट किया, और अभी इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था कि स्टार ऑफ एड्रेस इज नथिंग बट वैल्यू विच इज स्टोर्ड ऑन दैट एड्रेस। तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा, तो पहले तो अब मैंने रन किया मेरे सिस्टम पे तो ये आ रहा है। एड्रेस शायद हर एक सिस्टम पे अलग अलग हो सकते हैं, मैंने मेरे सिस्टम पे रन किया तो रिजल्ट ये आया है कि वैल्यू ऑफ P1 एंड एड्रेस ऑफ इज FFF4। एड्रेस ऑफ P1 इज, P1 मीन्स वो पॉइंटर का एड्रेस क्या है, FFF2, एंड वैल्यू ऑफ इज 87 ए के लिए, इसका 87, स्टार P1 का भी 87 एंड स्टार ऑफ एम्परसेंड। अब यहाँ पे ध्यान लगा के देखो कि हमने क्या लिखा है, P इज इक्वल टू एम्परसेंड, P1 इज इक्वल टू एम्परसेंड। अब ये स्टार P1 की जगह पे अगर मैं एम्परसेंड रिप्लेस करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, स्टार ऑफ एम्परसेंड। सो स्टार ऑफ एम्परसेंड मीन्स value which is stored on that particular memory location. So thank you very much for watching this video. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you very much.